जल्दी आओ. A function can be virtual or function can be abstract. Okay? बेटा लिखना मत, मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? आप पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो और कल बैठो तो मैं दूसरा लिखवा दूँ, चिंता नहीं, दूसरा लिखवा दूँ. तो ज़्यादा तो सुनिएगा ठीक से. A function can be virtual, a function can be abstract. Function can be abstract, but function can be virtual. But it can be abstract. Whether a function is virtual, और जब भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आप उसको थोड़ा विनम्र भाव से बोल दो, let me speak first. Let me complete my questions first and answer first. कोई बुरा नहीं लगेगा उसको, कोई बुरा नहीं लगेगा. If function is virtual or your questions are, if it is abstract, I have to have a inheritance first. Without inheritance, I cannot have visualization and imagination and picturization of virtual and abstract. I cannot think of virtual without inheritance. Last, I cannot think a static function without a static variable. I cannot think member function without member variables. Similarly, I cannot think virtual function. मुझे टोकना मत लगेगा कोई आदमी. I cannot think a virtual function and abstract function without inheritance. Rule number 1. Rule number 2. If I say inheritance, what does it mean? There is a default association of base class in derived class. There is a default containership. It means a base class object is embedded in derived class. Base class object is embedded in derived class. Means first implicitly call the base class constructor, then the derived class constructor. And definitely by derived class we can call the base class. But I want to make one function throughout the whole program. Sorry, I want to make one virtual function throughout the whole classes as they can got virtually affected. Doesn't mean I will have in every class to write virtual. I write virtual in base class. For whom? The function. I define a function called virtual in a base class. It means beta, suno, younger, I define one function called do work or discipline or auditing or open or shut down or backup or replica or clone. I make one function as a virtual.
It means derived class can have redefinition. Derived class can have redefinition of that existing function. It is a planning management. Derived class can have redefinition of that virtual function. But why it is called virtual? Still, why it is called virtual? Because base class cannot have a reason to look up derived class. ये एक राजीव यादव का आंसर था. सुनो बेटे, मैं आपको देख के इतना बार-बार क्यों बोलता हूँ कि आपने वो C++ की थोड़ी सी नॉलेज में देखा आपकी बातों में. Base class cannot have a reason, cannot have an imagination for derived class. Every derived class for a base class, no, for every derived class for a base class, it is a virtual. But every base class for a derived class is a real. Real. Every derived class for a base class is imaginary. Every derived class for a base class is imaginary. Visualization, probability, because base class cannot call derived class functions. Base class by any hook and crook methods ready, it cannot call derived class function. Because derived class is not embedded in base class. Rather than base class is embedded in what? Derived class. सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पर 5-6 आदमी को ये फिलॉसफी समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. So now, how base class can manage derived class? How base class can have a dream for a derived class? Derived class is really calling a base class function. But how base class can call derived class function? For a certain routine, baby, for a certain routine. Base class says, मैं बेटे फिलॉसफी पढ़ाना है राजीव यादव. Base class says, I don't want to go every corner of derived class. चल पहले फिलॉसफी पढ़ो. Base class says, I don't want to go for everything of derived class. But base class says, my heart says, what my derived class is doing, I would like to know at least first. I don't want to really go every day to my child's classroom. But sometimes I want to go. How I can go? If you have a virtual function, you can have a introspection, diagnosis of any function which is further derived in derived class or not. Otherwise, derived class is always willing to call the what? Base class functions. But how base class can call the derived class function? Beta, for every function, so now, for every function of derived class, every function of derived class for a base class is virtual. It is out of scope and out to reach. Because the name of derived class is not available in a base class. तो साले बीच के बच्चे को देख के गुस्सा आता है, मतलब इनको पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर. साले कौन आया उसको देखते हैं जानवर. Idiot.
दो कप चाय बोला था अंकल के लिए। तो बेटे मैं क्या बोलना चाहूँ, पहले मेरे पॉइंट को पकड़ सकते हो तो पहले पकड़ो। इसमें तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। A man is married, has got a child. Do you understand what I'm trying to convince? It is a philosophy of life. It is a philosophy of inheritance. If you will have a kid, every time your pointer will be resides in a derived class. Every time. मेरे शादी से पहले का लाइफ और शादी के बाद का लाइफ और बच्चा के होने के बाद का लाइफ बिल्कुल चेंज। तो समझेंगे तो अच्छा बोलता है वर्चुअल फंक्शन कि बेस क्लास चाह के भी डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। आप समझ में हाउ डिराइव क्लास फंक्शन is called by base class. And second question beta, why base class is crazy? बेटा गुस्से में बोलता है बाप को, why base class is very crazy to call a derived class function? Why base class is crazy for calling a derived class function? Then base class giving the answer in very upset manner. Beta, I don't want to call your entire functions. I don't want to see in every corner. I'm just looking, are you happy or not? What you have got, I don't care. Are you happy? I am really happy. And I was happy. The happy is a function in base class. And beta, how base class can survive if child class is not happy? So now the base class says, do one thing, you also got a function call, you also take a function called what? Happy. So if any function is declared as a virtual, it means that function needs to define. बेटा मैं ये नहीं बोल रहा has to define, मैं दिल्ली नहीं बोल रहा हूं। If any function declared as a virtual, मैं enforcement नहीं कर रहा हूं बेटे, मैं enforcement नहीं कर रहा हूं। जहां डायरेक्ट enforcement आ गई, there is a narrow difference between virtual and static. If base class is having a function called happy, uncle is happy, he is thinking my child should be happy in America. Says to wife, auntie, you make a dial to this person. I want to talk to him. And what he is talking to him, are you happy beta? He never asks how much you are earning and how much what you do there. If class is having a virtual function, that function must be defined. No, that function can have a redefinition. That function can have a, not will be, please keep in mind. ये किसने कह दिया झंकार सर कि किसी क्लास में अगर वर्चुअल फंक्शन है उसको डिफाइन करना मस्ट? किसने कह दिया? किसने कह दिया बदतमीज? If class is having a virtual function, then derived class can have a redefinition in derived class. अगर बाप के पास विजन है तो किसने कह दिया बेटे के पास भी विजन है? जो छोटा बच्चा अभी 3 महीने का है उसके पास विजन नहीं है, उसके पास विजन आ जाएगा यार।
और बेटे अगर बाप के पास ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग, तो डिराइव क्लास के पास ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर बेस क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो डिराइव क्लास पास उसकी बॉडी होनी चाहिए। सब लिखते चलो, बाद याद नहीं रहेगा कुछ। Can you give me a live example? Yes, I can give a live example. What you want to use? I want to go for database. What you want to use in database, baby? Procedure, figure, cursor, joining, views. You cannot. Unless or until if you don't open the connection. Unless or until if you don't open the connection. So by the abstract function, you are putting a constraint for a derived class. By the abstract function, as a database called limit, called constraint, called like, called even though primary key, sorry, know what I'm saying, even though primary key, even though called default, these are basically constraint keyword. So how base class can have a constraint for derived class? You have to wake up at this time. You have to go to bed at a particular time. So if you are writing any business logic for any applications, for achieving a consistency in applications, achieving a consistency in application, derived class has to have a following the business criteria of the what? Base class. So open function is abstract function, and that open function needs to define in a derived class. Then you can go for writing SQL queries or execute non-query or execute reader. You can call your function, but first you define my abstract function. So I define my function called show, but you must write within the show called con.open. So by the abstract class, sorry, by the abstract function, you can have a complete execution of derived class under your control. But if you have got a virtual function, it is like an inspiration. You can have, and you can override, like you have made 2-bedroom flat. Take an example. You says, I don't have money nowadays. Beta says, don't worry father, when I will have an income. I was getting her words 2 days back. It was very closing and touching word. She says to me, my father-in-law is keen of computer. He loves computer. She says to me 2 days back, she has got laptop. She says to me, when I will have in job, I will first purchase the laptop for the what? Child. I mean for the father. अगर किसी क्लास में बैठे वर्चुअल है तो सोचो उसकी बॉडी कब लिखी जाएगी? रन टाइम। डार्लिंग को मैं कहा रहा हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई? और ये मत कहो उसकी रन टाइम में बॉडी लिखी जाए। It is a great relations where a base class is having incomplete mode. अभी मैं YouTube पे अमिताभ बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का सुना था मधुशाला। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बड़ा भाई इज वेरी शॉकिंग फॉर दैट। तो मैं साथ में कौन है गैलेक्सी ले गया था साथ में, उसमें इंटरनेट चलता रहता है हर वक्त। वॉज ड्राइविंग द कार एंड ही सेड टू मी, संदीप वो लगा दे यार, मधुशाला लगा दे। और पूरी जर्नी भी इंजॉयड लॉट।
बट अंकल मधुशाला किसका सुना? बाप का नहीं सुना, बेटे का सुना। मैं खोजता रह गया यूट्यूब पे कि मुझे हरिवंश राय बच्चन का मिल जाए। बोलो कौन? आवाज में मधुशाला नहीं मिला बेटे, मन्ना डे का मिला और अमिताभ बच्चन का मिला। तो बाप ने कभी लिखा था और उसको बेटा ने सुना। बट आई वॉज सर्चिंग होल 2 or 3 hours ऑन द रोड ऑफ इटावा कि मुझे मिल जाए, नहीं मिला। आई वॉज सर्चिंग हरिवंश राय बच्चन बाई मधुशाला, आई हैव इट। उनकी पोएम मिलती थी बट उनका आवाज नहीं मिलता। तो हाथ थके भी किसका खोजा? मन्ना डे का, या बोलो किसका? अमिताभ बच्चन। तो बेटे अगर बेस क्लास के पास अगर वर्चुअल फंक्शन है तो समझ लो बेटा वो इनकम्प्लीट काम है। उसको रिडिफाइन कहाँ पे करना है बोलो? तो बेटा वो रन टाइम हो गया। तो ठीक है, हर बच्चा संदीप करण से अच्छा बनेगा, मुझे यकीन। बेटे कब बनेगा? रन टाइम पे। अब बोलो बेटे मार्केट में कितने संदीप करण है? 2 से ज्यादा संदीप करण है, पॉलीमॉर्फिक। तो पापा के पास भी आवाज है और बेटे के पास भी क्या बोलो? आवाज है। तो आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से आप डबल लिंक लिस्ट मूव करते, क्योंकि बेस क्लास से आप चाइल्ड क्लास की ओर आते और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन से बेटे आप डिराइव क्लास के बिजनेस लॉजिक लिखते। गेटिंग सर? am I right? By the abstract function you're writing a business. And what is business logic? I have set of operation to be performed. I have set of operation to be performed. But beta, how you can call proc? How you can go for transactions? How you can go for any other activities if you don't keep remembering to open the con.open and con.close? And what about virtual Sandeep? तो इसका एग्जाम्पल हो दो. Yes, there is ASPX space. सुन बेटा, अब मैं virtual function का लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ. There is ASPX space. The man who has made a ASPX, he has written his rendering in HTML file. So base class is having a function called virtual. Base class is having a function called virtual. That function gives output in HTML file. Can I change this routine? If I define if I override the function call, if I override the what? If I override, तो बेस क्लास ने डिराइव क्लास के लिए क्या क्या छोड़ा? बेस क्लास ने बोला मैंने सारा काम कर दिया, बट तुमको करना क्या है? इस खाना को निकाल कर खाना है. हमने काम कर दिया, बस तुमको करना क्या है? कार की चाबी लेनी, मामा को लेके आना है. तो जो काम हमने कर दिया उसको तुम क्या करो? ओवर राइड करो. बट बेस क्लास बोलता है मैं कुछ चीजों को ओवरराइड नहीं होने दूंगा. मैं कुछ चीजों को ओवरराइड नहीं होने दूंगा. पापा मतलब आप क्या क्या ओवरराइड होने दोगे? आप मेरे डिसिप्लिन से एक्वायर हो जाओ, इंस्पायर्ड हो जाओ, आप मेरे बिहेवियर से इंस्पायर्ड हो जाओ. बट तुमको बेटे हम एक चीज तुमको ओवरराइड करने नहीं देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी क्वालिफिकेशन. तुम साले कुछ भी कर लो, तुमको मेरी डिग्री काम नहीं आएगी. इस अंकल ये मत करना, हर चीज का इनहेरिटेंस होता है. जिस चीज का सुनो, जिस चीज का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता उसका ओवरराइड भी नहीं हो सकता. जिस चीज का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता वो चीज ओवरराइड नहीं हो सकता. और ये सुन लो, हर चीज ओवरराइड भी नहीं हो सकता. The education of father is no more used for child. अब ये सोचो बेटे, हम किस किस चीज को वर्चुअल बनाएं. मेरे पास प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन फॉर फेबोनिकी सीरीज.
मेरे पास म्यूजिक है, मेरे पास म्यूजिक है, बट पापा के पास कौन सी म्यूजिक थी? हारमोनियम वाली। बेटे आज भी म्यूजिक है, बट हारमोनियम वाली नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन म्यूजिक। तो पापा के पास वर्चुअल फंक्शन थी रेंडर। रेंडर इज ए वर्चुअल फंक्शन, और ओवरराइड कर सकता है, बोलो कहां पे? डिराइव क्लास में। तो बेटा रेंडरिंग इज ऑलवेज वर्चुअल। The personality of a human person can be overridden by derived class. Personality is the outcome of your resultant. It's called persona. Personality is the outcome of your resultant. A child can override the personality. The output of any function you can do override. That's why beta, you make a function as an area of triangle. Tell me what you can override, really. Tell me. Really, what you can override, tell me first. You will never change the outer area of triangle. Keep in mind. The value of pi cannot be override. But a word called music can be override. बेटा बेटे 50 साल के बाद भी पाई की वैल्यू ओवरराइड होगी नहीं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और बेटा जिसको ओवरराइड करा उसकी आउटपुट और उसके 20 साल पहले के फंक्शन की जो आउटपुट है, बेटे दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो क्या फायदा है? राइट। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं मुझे अगर इस YouTube में अगर हरिवंश राय बच्चन का रियल आवाज सुन लूं तो मजा आएगा उसके बेटे का सुनने में, कि उसमें उसकी थॉट्स होगी, उसकी इमोशंस होगी। तो बेटा कितना भी हो जाए वो बाप नहीं हो सकता। वो इंस्पायर्ड हो सकता है, वो बाप नहीं हो सकता। हमने खेलते हुए देखा है उसको यार। वो बेटा कल वो खेलेगा, वो कल खेलेगा, वो बाप के जैसा खेलेगा। अगर बाप के जैसा खेलेगा तो ओवरराइड होगा, ओवरराइड नहीं होगा, पर वो कल खेलेगा। ही मस्ट हैव। जैसे गावस्कर का बेटा खेलने का ट्राई किया, नहीं खेल पाए। कौन? नहीं होगा डेफिनेटली बेटे। जिस मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, जिस साले चीज का वैल्यू बदल नहीं सकता है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। हमें जीवन सर ने ये सिखाया म्यूजिक। संदीप मैं तुमको तीन चीज बोलता हूँ, हमें याद है वो दिन। हम 3 चीज बोलते, ओवरराइड कर सकते हो क्या? मैं कैसे बोलो, क्या तुम पाई को ओवरराइड कर सकते हो? मैं चुप हो गया। क्या तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ओवरराइड कर सकते हो? मैं चुप हो गया। जहां उसने म्यूजिक बोला मैंने कहा मैं ओवरराइड कर सकता हूं कि बेटे आज से 100 साल भी साले म्यूजिक होती थी और आज भी म्यूजिक है। बेटे बदल क्या क्या बोलो, इंस्ट्रूमेंटेशन बदल गया। तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, रेंडरिंग। रेंडरिंग जो वर्ड है ये आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन से आया है। रेंडरिंग से पता रेंडरिंग क्या होता है? सुनेगा रेंडरिंग क्या होता है? एक सितार वादन। मेरी मदर अपने जमाने में अच्छा म्यूजिक बजाती थी, तो अभी भी देखती है। शी इज रिकॉलिंग ओल्ड डेज एंड शी हैज गॉट अ फोटो एल्बम्स। और गुस्से मुझे लगा तुम लोग के आने से मेरा सब कुछ खराब हो गया। मैं उसके 60s के देखता हूँ फोटो एल्बम्स बैकग्राउंड में। तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूँ, उन दिनों साले रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? एक आदमी 10 लोगों के सामने ऐसे बजा रहा है, राइट? और वो घर आता है, मैं भी खरीदूंगा, मैं भी बजाऊंगा। जैसे बजाओ 2 बार बजाता है और थर्ड डे ज्यादा कोने फेंक देता है, राइट? तो कुछ पल के लिए क्या होता है, बोलो इंस्पायर्ड होता है, तो बाद में उसको बजा नहीं पाता है। तो बेटे दोनों की आउटपुट आ रही है। डिफरेंसेस किस चीज का? बोलो आउटपुट आ रही है। तो बेटे रेंडरिंग वर्ड, रेंडर्ड, रेंडरिंग, ये कहां से आ रहा है? बोलो म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट जो हुआ है। नॉट रेंडरिंग संदीप। इसी दरवाजे में आवाज सही से साफ नहीं आ रही है, माइक ठीक करो। तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, वेब पेज की रेंडरिंग होती है।
तो बेटे वेब पेज की रैंकिंग कौन लिखता है? बेस क्लास। हम चाहें तो उसका ओवरराइड कर सकते हैं। तो बेटे ये देखना पड़ेगा किस किस फंक्शन के पहले वर्चुअल लगा हुआ, ये देखना। अब बेटा ऐसे बोलना, ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल। तो घर जाती है, तो तू घर जाएगी ना, घर में काम करेगी कि नहीं, करेगी कि नहीं करेगी? तो बेटे जो काम हो चुका है उसी को तुम क्या करोगे? बोलो रीडिफाइन करो। तो बेटे आप ये देखो किस किस फंक्शन को वर्चुअल बनाए और कौन कौन सा ओवरराइड हो सकता है। ही इज राइट, रीड ऑनली ओवरराइड नहीं हो सकता। सर में कांस्टेंट क्या हो जाए? बोलो ओवरराइड हो जाए। और डार्लिंग सुन थर्ड, कंस्ट्रक्टर में ओवरराइड नहीं हो सकता। क्यों? हम कंस्ट्रक्टर के पहले वर्चुअल लगा ही नहीं सकते। क्यों? कंस्ट्रक्टर का वर्चुअल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है। अगर बेटे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो गया तो बेटा क्या लिख देगा? मेरा जन्म 1975 में हुआ था। अब आपका जन्म 1975, ये कौन सा इनहेरिटेंस है बालक? नहीं है समझ में? इसलिए कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है। अगर ढक्कन कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस, मैं एक लिंक दे रहा हूं, इसी बात याद आ गया। एक लिंक, सारा लिंक है वो जबरदस्त। It is a link for man who worked 7 years in Hoops concepts. Good job. अब तो सारा हो गया नहीं? Yes sir. अब क्या लग गया? member अच्छा, अब 2 मिनट लगेगा। Members पे रखो तो अभी कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। और इस लिंक को बेटा समाज रखना, धन्यवाद से मैं दे रहा हूँ। C++FAQ by D। मर गया बेचारे, he is no more, मर गए। C++ को बनाने वाला अब नहीं रहा है दुनिया में। इनका फोटो शायद कहीं होगा, पढ़ाई था तुम देख लेना। पहले बड़े स्मार्ट होते थे तो गंजी हो गए थे। अब आ जाओ बेटे, इनका इंटरव्यू देखेगा, कैसे उस सीखेगा? सीख इनसे उस। इसका बॉस तुम क्या बताओ, गधे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तुम उस आदमी से उसका डिप्रेशन पूछ रहे हो बेटे, इसने बनाया सीख। ये स्टॉक्सर की फैक्ट, इससे क्वेश्चन पूछे गए, इनसे जवाब आंधी होने दिए। इतना शानदार जाम तुमको मैं क्या बताऊं। और आगे बढ़ो ना, आगे। अब मतलब बेटे मैं इस वर्ड के बारे में क्या बोलूं? व्हाट इज जेनरिक प्रोग्राम? नेक्स्ट, व्हाई डज C++ अलाउ अनसेफ कोड? जिसने बनाई C++ उससे पूछा जा रहा है इस अनसेफ प्रोग्राम। Then how does he has given the smart answer in an interview? Next question. एक लास्ट पार्ट मैं दिखाता हूँ। बहुत लंबा लिंक है, इसमें बहुत सारे why the size of the class is not 0? बेटे क्या जवाब दो?
What are the member functions not virtual by default? Oh my God. Why are destructors not virtual by default? Beautiful answer. Oh my God, next question. Why don't have virtual constructors? मैंने क्या प्रूफ किया है बॉस, क्या बताऊं? ये प्रूफ करने का जो तरीका है, अगर आप ये तो पढ़ के देखो. एंड व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन? आप क्या पढ़ना है? स्टार्ट. चलो कम बैक टू पॉइंट. देख लिया लिंक? सर इसको रिजल्ट इसको पढ़ के देखिएगा. यू विल हैव अ डिफरेंट लाइफ द मोमेंट यू गो फॉर इट. स्टैटिक फंक्शन हो गया, वर्चुअल फंक्शन हो गया, स्टैटिक फंक्शन लगे बोलो कौन? ऑपरेटर फंक्शंस. चलो लास्ट पार्ट पे आओ. मतलब बेटे आपको जो जो लगे फर्दर मॉडिफिकेशन हो सकता है, आप उसको बेटे क्या रखो बोलो? वर्चुअल. और जिस तरह का आपका बिजनेस लॉजिक कंप्लीट हो सकता है उसको स्टैटिक. कहाँ गया गधा? I define the class. बेटे ये थोड़ा टिपिकल चीज है, इसका मैं आपको आंसर देना ठीक से. I define the class. सुनो ठीक से. Why operator function? I define the class for customizing the information. So for me, class is a service. I can make a proxy of that class to remotely access this functionality. It's the SOA based, WCF and web service. So for me, class plays a major role whether I go for accessing a class remotely or locally. Remotely by proxy, locally only by class and object. Stub and skeleton. Sir, so there are several factors. I appreciate the class. So class can have a virtual functions. मैं अभी बेटे जोड़ का तमाचा धीरे से मार रहा हूँ. गॉड से सुन. I really appreciate the class for having a conclusion. I really appreciate the class for having a virtual functions, abstract functions, member function. Member function is static function is categorization. What is categorization? Member variable go member function. Static variable go static variable. Member variable go default constructor. Static variable go static constructor. Things can be modified really. Virtual function. You have to do abstract function. So I love class. It is a collection of several activities, and obviously once we make an object, they can behave like this. So class and object. So object and class. So listen, class is before the reaction, and object is after the reaction. That's why object is a runtime entities or real entities. I can feel object. I can see object, I can feel class.
That's why class is a logical abstraction. Instead of that, class by class, anyhow, I make a data type. True? I make a data type. True. And within this, we can have several features. Static function, member function, virtual function, blah blah feature, functions. But sir, due to class, थोड़ा मुंह बना के serious, यही लिखा हुआ है. Due to class, I'm losing something. Really? Yes. यही का language है, यही का. ये बोलता है महान बिजनेस स्टार सर. Due to class, I'm losing something. And due to class, I'm getting something. Oh my God. समझने का ट्राई करना. Due to class, I'm getting several things. But due to class, I'm losing something. Really? What? If I make an object by class, understand Sandeep, it can support early binding, late binding, polymorphic nature, static polymorphism, runtime polymorphism. I really appreciate your class, but I'm losing something. अरे बोल तो साले क्या लूज कर रहा है रे? सर, क्लास से जो बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट और क्लास का जो डेटा टाइप होगा उसी का तो बनेगा ऑब्जेक्ट. नाम वो ठीक से SCL क्लास का नाम, ठीक है. उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है झंकार या दीपक या संदीप, इनको ऑपरेटर्स नहीं आता सर. ये हम सब इंटरव्यू में दे सकते हैं. यहाँ सब इंटरव्यू में दे सकते हैं. सुनो इडियट ना लाइक. तो बाय द क्लास आई कैन मेक अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जान मारेगा संदीप करा. बाय द क्लास I can make a user defined data type, and if I make an object of that data type, if I make an object of that data type, I'm losing something. Like ampersand operator, comparison operator, plus operator, minus operator. But instead of that, I am getting several features. So operator is a function which applied on a class. Operator is a function which applied on a class to support the relevant operators, which has to be so that if I make an object of that class, they can support those operators which I have applied by the what? Operator function. Yeah, sorry. Yeah, अब आया? अब करिए. साले में सारे मार देगा संदीप करन. पहले स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी से, उसका रिदम लॉ, उसका एथिक्स लॉ. पहले तो चाहता क्या है? हम एक चीज के चक्कर में हम पूरा तबाह हो गए. अंकल, शाम की बैच हमें सस्पेंड करनी होती है. आई फील अनकंफर्टेबल. बैच पता WCF का साला बंद करो, साले को सुबह लेकर आओ. क्यों? शाम में रहता है प्रेम. ही इज माई ऑब्जेक्ट विच होल्ड द इंफॉर्मेशंस. उस गधे को बोलो बैच सस्पेंड करो, वो नहीं कर सकता. क्यों? उसे पढ़ना नहीं आता. ब्लडी माई ऑब्जेक्ट इन सीक एंड विक. आज बताओ, हम बच्चों के लिए इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट, एक ब्रेन, एक ऑब्जेक्ट अगर आता, उसके पीछे पैसे पागल की तरह बाप निछावर करता. क्यों? उसे तालीम देता, मैथ पढ़ाता, फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता, लोगों की समझ देता, बिहेवियर देता. अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट क्या है? सीक एंड वीक ऑब्जेक्ट. इट मीन्स हम क्या बोलेंगे बेटे? ऑब्जेक्ट इज ओनली मेड फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन. हैव यू गॉन मैड?
तो बदतमीज के पास मेरा अटेंडेंस शीट तो है, उस गधे को बुलाओ और बोलो फोन करके बैच को सस्पेंड करे, देख क्या करता है। संडे किसी बच्चे को पकड़ता है और फोन करता है। पर सुबह के बैच झंकार सर का होता, अब तुम चलो कर नहीं पाता फोन, पहले मोस्टली करता था फोन। उसमें से भी 20 में से 2 बंदे चले आते थे। पर मैं शाम के 20 बच्चे अगर पढ़ाऊं तो 15 वापस जाएंगे, मुझे पता है क्यों। इस चंद्र कम से कम पढ़ना आता है। तो बेटा क्या बोलोगे, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रेफर टू क्लास एंड रेडी ऑब्जेक्ट रेफर टू दोज क्लास और शिट दैट क्लास does not support entire operators or mostly important operators like assignment operators, comparison operators like plus operator, minus operators. So by the mean of operator function, by the operator function, और एक एग्जाम्पल में दीपक साहब को दिया था, बंदे ने क्या मेरे को एक्सप्लेन किया बता नहीं सकता हूँ। आज बताओ बेटे, आज देख तुमको दिखाते हैं मैं कितना गंदा उप्स पढ़ रहा हूँ। एक टॉपिक में जिंदगी बना दी मैंने। अगर वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो ये कह दो तो इनहेंसमेंट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है तो मेरा बेटा नालायक निकल रहा है, बदतमीज निकल रहा है, उसको डांट भी नहीं सकते। एक क्लास ले ली, चल बता, मैं देता हूं लिंक पढ़ने के लिए। इंटेक्स ले लिया, चल तू बोलती है बेटे मेरे को सी आता है ना, बेटा मोटा बोलता है मेरे को सी आता है, और तू बोलती है मेरे को C++ आता है। अब सर देख दिक्कत क्या दोनों के बीच में, वो दिक्कत है, इसे बंद कर दिया। जिसको सी आता बेटा उसको ये आता, मानती है। जिसको C++ आता, जावा आता, C# आता, उसको ज्यादा ये आता, मानते। चलो अब तुम आ जाओ, जावा छोड़, A स्पेस A1 बन गई ऑब्जेक्ट। मतलब बेटे A1 में क्या गया, X गया, बोल करे एक बना दी कंस्ट्रक्टर, X में डाल दिया 12। A1 में क्या आ गया, X, और क्या आ गया बोलो, आ गया। इसलिए मोटा बोलता है तो मेरे को X दो, तो मेरे को X दो। int y is equal to A1 डॉट एक्स नहीं कर सकते, क्यों? डेटा हेडिंग ब्रेक हो जाएगा। अब तो मुझे इस y में A1 की वैल्यू आके दो। तो बेटे A1 अगर दे रहा है अपनी जात को दे रहा है, राइट? A1 किसको देगा, किसी क्लास के किसी और ऑब्जेक्ट को। और मेरे पास बेटे कौन क्लास है, क्लास बी। अब मैं चाहता हूं बी क्लास को बनाओ ऑब्जेक्ट, और A1 किसको असाइन करूं, बी को। बेटे क्या कराएगा, क्लास टू क्लास कन्वर्सन। और ये क्या हुआ, क्लास टू बेसिक कन्वर्सन। ले इस मोटे ने बोला रोमिता मेरे पास इंट, बेटी मैं क्या बोल रहा हूं, इंट वाई। देख बेटे कुछ कहां गया, इंट वाई में 20 है, ये तेरे को बोलता है। अब तू बोलती मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसका तो बेटी तेरे A1 में X में 12 नहीं है, यस इंट वाई में 12 है, और तेरे पास ऑब्जेक्ट है उसमें X बंद है, उसमें 12 नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं, A1 इक्वल क्या हो जाए, बेटे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सोचो क्या कमाल का चीज ऑपरेटर फंक्शन। A1 में X है, मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, बोल कैसे स्लाइस करें। बेटे ये सब कुछ एडॉप्ट के होते हैं, टॉप लेवल MNCs के। अगर आप 3 चीज पढ़ के लाइफ में नहीं गए, आप कहीं के मेरे सामने स्टैंड नहीं कर सकते। क्लास टू क्लास कन्वर्जन, क्लास टू बेसिक कन्वर्जन, एंड बेसिक टू व्हाट, क्लास। ये फंडामेंटल आर्किटेक्चर। 3 चीज नहीं आया आपको कुछ नहीं आया। आप वैसे आदमी हैं, आप जैसे लोगों के से दोस्ती करते, जैसा वैसा आप सबसे बातें नहीं करते। कुछ लोग एक ऑब्जेक्ट लिमिटेशंस क्या है,
सर एक करके दिखा, एक कोई करके दिखा, उठ ले मार्कर, एक करके दिखाओ कोई। तो मुझे क्लास टू क्लास कन्वर्जन करके दिखाओ। लो मार्कर दोस्तों, वही लिखो प्रोग्राम, वहीं पे लिखो डस्टर दोस्तों, देखते हैं क्या लिखता है। एक लिंक बेटे पढ़ी थी 2002 में, वो लिंक दे रहा हूं, वही लिखना उसी बोर्ड पे, क्लास टू क्लास कन्वर्जन कैसे करेगा। उस राइटर का नाम क्या था? बेटे हम बनाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। मेरे पास अगर 2 क्लास है, एक एसएल क्लास है, एक सप्लायर क्लास है। सुनिए मेरा क्वेश्चन, एसएल क्लास का ऑब्जेक्ट बोलता मैं तो अपनी वैल्यू उसको असाइन करूंगा जो मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये मैं कहां फंस गया यार, ये कैसा कंपनी है साला, कोई साला किसी से बात करने को तैयार नहीं है। सुन करे, और सप्लायर क्लास बोलता मैं जो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट तो मैं अपना वैल्यू उसको असाइन करूंगा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को। मैं चाहता हूं सप्लायर का इंफॉर्मेशन एसएल को पास हो, कैसे करेगा? लिख करे, अच्छा छोड़ूंगा नहीं तेरे को। उस लिंक का नाम क्या था यार? विजयमुखी। बेटे उसको आप पढ़ना प्लीज, मतलब बेटे 3 बैठा यार, छोड़ बैठा, मजाक नहीं ऐसे बोल रहा हूं बेटे। 3 चीज लाइफ में याद रखो, सुनना बेटे, लास्ट टाइम बोलो। एक सुन करिए, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको देने वाला भी कौन होगा? उसी क्लास का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। मानती हो बेटे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? मेरे को पता चला था 2001 की बातें हैं कि जिया सराय के पास एक बंदा है, इन्हीं का उड़िया बंदा था, मैं नाम उसका पूरा बोल रहा हूँ, कोई दास था, समथिंग दास। उसके वो सबरेट की नॉलेज है, उन दिनों की बात है, सबरेट और जीएसटी। बेटे मैं यहाँ से उसको खोजता रहा जिया सराय में जाकर, और खोज लिया, और पूरी रात उससे मैंने पढ़ा। हम पढ़ने सारे कुछ भी करने को तैयार, हम पढ़ने के लिए हम किसी से सीखने को तैयार, अपने बड़े से, अपने छोटे से, अपने एज के बराबर से। अब उस एज में वो कम से कम 6 साल छोटा था। उन दिनों अमेरिका से जीएसपी पे काम करके आया था, और एक मेरा प्रोजेक्ट था जीएसपी के ऊपर, उतने मेरे हाथ साफ नहीं थे। एक से नंबर मिला, वो महापात्रा था कोई, उससे नंबर लिया, वो उसके पास गया और उसको उससे सीखा। हम सीखने को कुछ नहीं करने को दिया। तो बेटे ये मत बोलो एक ऑब्जेक्ट जब भी लेगा अपने ही क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से लेगा। एक ऑब्जेक्ट, लास्ट संडे साला मैंने क्या करा, मैंने बच्चों का एटीट्यूड चेक किया, इन नालायकों का, तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा, देखते हैं क्या एटीट्यूड है। एक ऑब्जेक्ट को देने वाला ये मत कहो बेटे, ये मत कहो ऑलवेज दूसरा ऑब्जेक्ट ही हो। इस वाला बोलता है ईंट दे रहा है ऑब्जेक्ट को देख, तो बेटे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तुम इस ऑब्जेक्ट को इतना आइसोलेट क्यों करते हो? आज झंकार तो आया, बहुत जाकर अभिषेक से पढ़ ले, मीनू गोयल से पढ़ ले, बिलाल से पढ़ ले, क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है? सर याद है पंकज द्विवेदी तो याद देखा नहीं पंकज द्विवेदी को? पंकज द्विवेदी को पढ़ाने वाला एक बीसीए की लड़की थी, मीनू गोयल, 2007 की बीसीए और 99 का बंदा। संदीप एक ऐसा बच्चा दो तो सिल्वर लाइट आती हो, WPF लाल पीला काला। बेटे सीखने का कोई एज किसी से नहीं है। हम ये बोल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को असाइन कौन करेगा? बदतमीज सेक्सुअल फंक्शन असाइन करेगा? करे तो डार्लिंग क्या बोल रहे हैं? फंक्शन क्यों कॉल करते हैं पता है मेरे को? फंक्शन इसलिए कॉल करते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल क्या हो जाए, बोलो, इनिशियलाइज हो जाए। पर हम नहीं चाहते हैं कि फंक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल इनिशियलाइज हो। हम चाहते हैं इंटू वाई कहीं पड़ी हो और वाई किसको दे दे? ऑब्जेक्ट को। और इतना गंदा है साला हम कि मैं अपनी ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी इंट को नहीं दे पा रहा, इंटू वाई को।
तो बेटा 3 चीज लाइफ में याद है, क्लास टू बेसिक एंड बेसिक टू क्लास। ये तुम 3 चीज कर लोगे ना, तुम्हारे मन का ईगो खत्म हो गया। और लाइफ में रुकने का मतलब है कि तुम्हें कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम। साल इसलिए कभी छोटा कभी बड़ा नहीं, हर लोग क्या बोलो बराबर। जब आपका बच्चा मुझसे मिलने आता है, प्रेम चाय पिलवाने, अगर मैं सुने मैं यहाँ का मालिक हूँ तो मैं बच्चों से कोई बात नहीं करूँगा। हम ये शो करना चाहते हैं, यहाँ का स्टूडेंट है, हम यहाँ पे सिंपल आदमी एम्प्लॉई हैं, हम कभी मालिक नहीं। कि बेटे हम सिखा पाएंगे तो तुम उससे बात कर पाओ। तो इस लाइन बेटे अगर आपको मौका मिले आज, तो आप आज इसी को पढ़ लें। उसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। हम इंट को देते हैं फ्लोट में, फ्लोट को देते हैं इंट में, हम ऑब्जेक्ट को इंट में क्यों नहीं दे पाते, हम इंट ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं दे पाते, हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में क्यों नहीं दे पाते। ये कौन सा आइसोलेट ऑब्जेक्ट है करा तो ऑलवेज कंपैटिबिलिटी खोजता है बदतमीज। इसलिए बेटे बाई ऑपरेटर फंक्शन आई कैन अचीव स्टैटिक पॉलीमॉर्फ। क्यों आज तुम्हें प्लस सिखाया, कल माइनस सिखाऊंगा, तो कुछ और सिखाऊंगा, हर कुछ सिखा के भेजूंगा। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म स्पेलिंग ठीक कर ले। बंदा लिखता है बड़ा ये क्या स्पेलिंग है विजय? बंदे ने क्या है सर, उसको प्लीज आज पढ़िएगा सर। फंडामेंटल इसके बेटे 15-20 प्रोग्राम्स बने हुए हैं। अब इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझने का और तुम करे इसको सी प्लस से करने का ट्राई करना। अरे बेटे दो ऑब्जेक्ट में सुनना, दो ऑब्जेक्ट में 2 डेट पड़े हुए हैं, चल कंपेयर कर तू। और 2 ऑब्जेक्ट 2 डिफरेंट टाइप के हैं, अब तू कंपेयर कर। तो बेटे क्या लिखता है, ये स्टार्टिंग है 2 ऑब्जेक्ट्स, और क्या चाहते हो बोलो, क्या चाहता है? डेज इलाज निकाल, कैसे निकाल? बेटे वाई एक्स होता तो माइनस कर लेते, प्लस कर लेते, यहाँ नहीं कर पाएंगे। उसी का सारा कहानी यहाँ। ओह माय गॉड, हो गया ना? मजा आया? ऐसा है, कल सुबह हम पूछेंगे, कल सुबह अब देखना, आधे दिन कल नहीं आएंगे, देखना आप लगा दी प्रिंसिपल लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। कल हम पूछेंगे, पूछना क्या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, उसको डिफाइन करना फर्क है। अब देखो आगे भी जाएगा।